हाँ जी बेटा अगे कंटिन्यू करते हैं पुत्र नेक्स्ट लिख लो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है। अच्छा पहले इम्प्लिसिट ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰਾਈਟ y ਐਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ sin x ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਨਫੈਕਟ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ sin ਆਫ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਐਟਸੈਟਰਾ ਕਿ y ਐਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਤੇ y ਐਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਨਸ ਵਾਟ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟਲੀ ਰਾਈਟ y ਐਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ y ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ x ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਮਤਲਬ ਕੋਈ y ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਧਰ। ਨਾਓ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ y ਐਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ y ਐਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਨਾ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ sin y let's say plus y square equal to sin x। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚੋਂ y ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ y ਸਕੁਅਰ ਇੱਧਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ y ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਰਮਸ x ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ you can have so many examples x cube plus y cube। ਠੀਕ ਹੈ plus xy equal to 4। ਠੀਕ ਹੈ ਆ x cube ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਬਟ y ਕਾਮਨ ਵੀ ਕੱਢ ਲੋਗੇ ਫਿਰ y ਸਕੁਅਰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਰਵ ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2x ਮਾਈਨਸ 2y। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ y ਸਕੁਅਰ ਤੇ y ਐਜ਼ ਅ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗੇਨ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਲੱਗ ਟੇਂਜੈਂਟ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡੀ ਬਾਈ ਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਲੋਪ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਸਲੋਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੀ ਬਾਈ ਡੀ ਐਕਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਵਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੂਲ ਫਟਾਫਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਫਲੋ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਕੋਸ ਐਕਸ ਐਟਸੈਟਰਾ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਰੂਲਸ ਹੈ ਨਾ। ਰੂਲਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਲੱਸ ਇਹ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਸ ਐਕਸ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਦਾ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਰੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਅਗਰ ਐਕਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਚੇਨ ਰੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਚੇਨ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਆ ਗਿਆ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਟਰਮ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਅਪਲਾਈ ਦਿਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ y ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ sin y equal to let's say x raised to power 4। question is find out dy by dx। ਤੋ ਆ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ 'ਚ x ਦੇ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ differentiate with respect to x। ठीक है so therefore d by dx हाँ जी प्लस है तो प्लस वाला रूल पहला y क्यूब दी प्लस d by dx of हाँ जी sin y and d by dx of x cube x4 सॉरी। अच्छा ठीक है राइट हैंड साइड ते बेटे x ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ ਤੇ x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ x4 ਦੀ x ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ 4x क्यूब आ जाएगी नो प्रॉब्लम। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੱਥੇ y ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ ਨੀਚੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ x ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੌਟ ਆਫ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆ dx ਇੱਧਰ ਖਿਸਕਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ dy ਤੇ ਇੱਥੇ dy। ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੌਟ ਆਫ ਆ dx ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੜ ਇੱਧਰ ਸਲਾਈਡ ਕਰਕੇ dy ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕਿਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ 'ਚ y ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ y ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਆਏਗੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਈਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ dx ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ y ਦੀ ਟਰਮ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਟ 4x क्यूब। नाउ
नाउ थिंग्स आर ईजी किदा हुण डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब विद रिस्पेक्ट टू y कितना हो गया 3y स्क्वायर इनटू y दी टर्म आ नाल एक dy by dx भी पिया ठीक है प्लस हाँ जी sin y दी विद रिस्पेक्ट टू y cos y इनटू dy by dx is equal to 4x cube I guess it's pretty easy now dy by dx ਦੀ दो टर्म है ਉਤੋਂ ਅਸੀਂ dy by dx ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ आंसर आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ कि 3y square plus cos y into dy by dx is equal to 4x cube so ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਓ so dy by dx ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4x cube divide by 3y square plus cos y ठीक है आंसर आ गया अच्छा ये तो हो गया प्रॉपर तरीका मतलब ਕਰਨ ਦਾ ਬਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ अगर ऑब्जर्व करिए तो की किया हुण मतलब मैं इनू डिफरेंशिएट करना है तो y क्यूब की डिफरेंशिएशन की है इत्थों सीधा देखो y क्यूब की डिफरेंशिएशन की है 3y स्क्वायर ठीक है अगर मतलब आप x वांगू मनीए इनू x क्यूब की होनी सी 3x स्क्वायर तो y क्यूब की 3y स्क्वायर बट नाल की लाता तुसी dy by dx सो जब भी तुसी y की टर्म कोई भी डिफरेंशिएट कर रहे हो y ਦੀ ਟਰਮ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ dy ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਨਾਲ dx ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸੋ देयरफॉर ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਰਮ ਤੁਸੀਂ y ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ x ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਆ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ dy by dx ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ sin y ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ cos y ਇਨਟੂ ਕੀ ਕਰਤਾ dy by dx और इनटू क्यों होया ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया कि एवरी टाइम यू डिफरेंशिएट टर्म ऑफ y और फिर dx इधर स्लाइड करोगे इत्थे फिर dy ना करोगे डिवाइड करोगे तो dy by dx फाइनली हरेक y ਦੀ टर्म ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ सो ਤੁਸੀਂ रूल लिख लो कि each time you differentiate the term of y treat it like a term of x ठीक है उन्होंने x वांग में मनो डिफरेंशिएट कर दो बट हाँ जी मल्टीप्लाई विद dy by dx ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ y ਦੀ ਟਰਮ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ y ਦੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਤੋਂ x ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕਰੋ ਔਰ x ਵਾਂਗੂ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ x ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਲਾ ਦੇਣੇ ਔਰ ਬਟ ਨਾਲ ਇੱਕ dy by dx ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕਿ sin of let's say y cube plus cos of x cube is equal to let's say tan of y square for example इन्हों differentiate करना ठीक है let us differentiate with respect to what x so कितना आएगा अच्छा हुण मैं सीधा कर रहा ठीक है तुसी भी गां तो एवें करोगे आ किहड़ी फॉर्म है sin x वाली मैं फिर की ऊपर रूल समझाया y ਦੀ ਟਰਮ ਨੂੰ x ਹੀ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ सो ਜੇ ਤੇ ਕੱਲਾ sin x ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ cos x ਆਣਾ ਸੀ sin x ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਚੇਨ ਰੂਲ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਚੇਨ ਰੂਲ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਚੇਨ ਰੂਲ ਲੱਗੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ अच्छा की आएगा sin x की डिफरेंशिएशन की होगी cos of x जो भी अंदर लिखा है इनटू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x of जो भी अंदर है ठीक है सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x से लिखा करो नहीं तो नंबर कट जाना ठीक है समझे गल sin x की cos x इनटू ਇਹਦਾ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हाँ जी अगे cos x दी माइनस sin x माइनस sin of x cube इनटू d by dx of x cube ठीक है tan of x दी secant square x मतलब जो भी अंदर secant square this into d by dx of this ठीक है प्रॉपर तुसी चेन रूल लाता हुण जब चेन रूल लाओगे जे ते अंदर बेटे x दी टर्म है फिर ते सीधी डिफरेंशिएशन हो जाएगी जे y दी टर्म है तुहानू ऊपर समझाया ओनू x वांगू डिफरेंशिएट करो सो दैट इज इक्वल टू cos of y cube हाँ जी y cube दी की होएगी 3y square क्योंकि y दी टर्म नू डिफरेंशिएट कीता है into dy by dx ठीक है आ गल है सो फिर तो अगर मैं तुम दसा कि चेन रूल लावांगे जे ते कल्ले अंदर x दी टर्म है ते डिफरेंशिएट कर दियो जे y दी टर्म है उन्हों x वांगू ट्रीट करके डिफरेंशिएट कर दियो बट मल्टीप्लाई कर दियो नाल dy by dx नाल अच्छा इत्थे sin of x cube हाँ जी x cube दी विद रिस्पेक्ट टू x 3x स्क्वायर इत्थे अगे लिख दिया करो इधर हाँ जी secant square y square हाँ जी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ y square विद रिस्पेक्ट टू x 2y ठीक है इनटू dy by dx या याद करना तरीका कि y स्क्वायर x स्क्वायर ही मनो x स्क्वायर दी क्या सी 2x बट y स्क्वायर दी 2y इनटू क्योंकि y दी टर्म डिफरेंशिएट कर रहे हो यू गॉट टू मल्टीप्लाई विद
डी वाई बाई डी एक्स। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ डी वाई बाई डी देखते हैं एक पासे इकट्ठे कर लो। सो एक आ वाली टर्म च डी वाई बाई डी एक्स, एक आ वाली टर्म च, ठीक है। सो ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਆ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਓ ਔਰ ਇਹ ਬਿਨਾ डी वाई बाई डी एक्स ਹੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ देयरफॉर ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, डी वाई बाई डी एक्स ਕਾਮਨ। सो आ वाली टर्म 3y स्क्वायर cos y क्यूब, हाँ जी, ਇਹਦੇ ਚੋਂ -2y secant स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू आ प्लस हो जाएगा तो 3x स्क्वायर साइन ऑफ x क्यूब। और फिर आ जो भी खिलारा आया इनू नीचे ले जाओ इत्थे। सो दिस बाय दिस ये थोड़ा डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। सो मैं एक बार फिर याद करा दा, हुण इत्थे आ जाओ मुड़ के। पहला स्टैंडर्ड फॉर्मूले हो गए, फिर रूल हमेशा कोई किदा दा भी सवाल हो फिर रूल देखो, प्लस है तो प्लस वाला रूल लाओ, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का रूल लिखो। जब रूल लिखोगे तो उस डिफरेंशिएशन आएगी, जब डिफरेंशिएशन आएगी अंदर ते अगर सीधा ही है तो आ वाले फॉर्मूला लगे, अगर एक्स की कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है फिर चेन रूल लग जाएगा। और अगर एक्स की टर्म की जगह कोई वाई की टर्म है तो फिर की है, उन्होंने एक्स वांगू ट्रीट करो, चेन रूल ला के डिफरेंशिएट करो, बट नाल फिर कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स। गल खत्म, ठीक है। सो स्टार्ट विद द रूल, दैन सी अंदर किहड़े किहड़े फंक्शन है उहदे हिसाब नाल डिफरेंशिएट कर लो। सो लेट अस हुण क्वेश्चन जिहड़े बिगनिंग वाले बेटे बड़े ख्याल नाल समझो पुत्तर। सारियां चों कहंदा डी वाई बाई डी एक्स लभो। ओके, पहले तो शुरू करते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। हाँ जी, पहला प्लस है, पहला जमा दूजा जमा तीजा जमा चौथा। हाँ जी, पहले दी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितनी आएगी, 3x स्क्वायर प्लस, फिर एडी करन लगे, एदी डिफरेंशिएशन च की है, प्रोडक्ट, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। मैं ऑलरेडी किया कि y नू x वांगू ट्रीट करो, ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। एक फंक्शन एक्स स्क्वायर दूजा y, तो प्रोडक्ट रूल लाओ इत्थे, एक्स स्क्वायर एज सच फर्स्ट फंक्शन एज सच, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड, सेकंड की है y, y तो सीधी डी बाई डी एक्स हो जाती ना, प्लस y एज सच डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूल लिखा। आ समझ आनी चाहिए गल, पहले प्लस है ना, पहले दी हो गई जमा, फिर दूजे दी कर लगे प्रोडक्ट रूल लग गया, फर्स्ट फंक्शन एज सच सेकंड दी प्लस सेकंड एज सच फर्स्ट दी, फिर प्लस, फिर एज फिर प्रोडक्ट रूल लग गया, ठीक है। एक्स एज सच डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज सच, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, मतलब या एक्स की डिफरेंशिएशन वो 1 होंगी, प्लस फिर आ वाई क्यूब दी, हाँ जी, 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट दी 0। आ समझ गल, वाई क्यूब नू एक्स क्यूब वांगू ट्रीट करो, एक्स क्यूब होंदा तो की होना सी 3x स्क्वायर, बट क्योंकि y की टर्म है तो 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। बस हुण बाकी लास्ट स्टैप इत्थे डिफरेंशिएट पूरी कर लो। सो दैट इज एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस, हाँ जी, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएट एक्स दे रिस्पेक्ट 2x, सो दैट इज 2xy, हाँ जी, वाई स्क्वायर दी कितनी आएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सो 2y अगे x है इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0। तो लास्ट स्टैप की होंगे पुत्र, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स है उन्होंने चो डी वाई बाई डी एक्स इकट्ठा कर लो। तो डी वाई बाई डी एक्स की आ गया बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा आ वाली टर्म्स बिना डी वाई बाई डी एक्स वाली राइट हैंड साइड पर लै जाओ, साइन माइनस आएगा वो मैं कॉमन कर लो, ठीक है, कितना आ गया, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सो आ वाला टर्म नीचे लै जाओ, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy भी होना आएगा ऐसा, ठीक है, डिवाइड बाय आ वाली टर्म जी नीचे आएगी ना बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2xy, आ साडा आंसर आ गया, ठीक, दिस इज द आंसर, ठीक है। हुण समझ आई गल। सो फिर तो डिफरेंशिएट करन लगांगे, पहला रूल वेखो, प्लस है तो तुसी प्लस वाला लाया, फिर मल्टीप्लाई सी और आता, फिर रूल के अंदर डिफरेंशिएशन आएगी, डिफरेंशिएशन च अगर एक्स की टर्म है तो सीधा ही हो गया, वाई की टर्म है तो एक्स वांगू करके मल्टीप्लाई कर दो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है।
और फिर डी वाई बाई डी एक्स दी टर्म्स एक बन्ने ले जाके एक पासे ले जाके डी बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लो। ठीक है, सो आई होप आ चीज़ थानू क्लियर है। अच्छा, ਇਹਦਾ ना एक इंप्लिसिट फंक्शन ਦਾ ऑब्जेक्टिव शॉर्टकट लिख लो जस्ट इन केस आवे तो जिदा इदा ने अज ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी कर सकते हो। अच्छा, एक एक टर्म होंगी है पार्शल डिफरेंसीएशन। ठीक है, तो पार्शल डिफरेंसीएशन का सिंबल डैल होंगे, इनू डैल कहते। ठीक है, मैं कਹਾਂ डैल एफ बाय डैल एक्स। ठीक है, इसका मतलब पार्शली डिफरेंशिएट एक्स विद रिस्पैक्ट टू एक्स। अगर एफ जोड़ा है एक्स तो वाई का फंक्शन है तो यदा मतलब है पार्शल डिफरेंसीएशन करो एफ नू एक्स के रिस्पैक्ट ट्रीटिंग वाई एज अ कॉन्सटेंट। ठीक है, और अगर लिखा है डेल एफ बाय डेल वाई, यदा मतलब एफ नू डिफरेंशिएट करो वाई के रिस्पैक्ट ट्रीटिंग एक्स एज अ कॉन्सटेंट। ठीक है, सो एक का रिजल्ट लिख लो कि डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल एफ बाय डेल एक्स। ठीक है, मतलब पहला जो भी एक्सप्रैशन है एफ एनू एफ एक्स वाई कहने हैं, मतलब इन द एन एक्सप्रैशन कंटेनिंग एक्स एंड वाई, ਉਹਦੀ डिफरेंशिएशन करो एक्स के रिस्पैक्ट वाई कॉन्स्टेंट मानते हुए। ठीक है, और फिर नीचे उन्होंने डिफरेंशिएट करो वाई के रिस्पैक्ट एक्स कॉन्स्टेंट मानते हुए, डिवाइड करोगे आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला नोट कर लो। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई कांस्टेंट एंड डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू वाई ट्रीटिंग एक्स कांस्टेंट। ठीक है, so that'll give you what dy by dx. let us verify for this problem. अच्छा, आ एफ एक्स वाई देता है कि ये थोड़े को एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब लेट्स से माइनस 81 इक्वल टू 0। आ थोड़ा एफ एक्स वाई है। ठीक है, एफ आ गया लेट्स से एक्स कॉमा वाई एवं लिख देंगे कि एक्स कॉमा वाई का एक एक्सप्रैशन है। अच्छा, हम इनू डिफरेंशिएट करते हैं डेल एफ बाय डेल एक्स, मतलब विद रिस्पैक्ट टू एक्स करो वाई कॉन्स्टेंट। तो ठीक है, हम मतलब एक्स के रिस्पैक्ट करते पे हैं, एक्स क्यूब की एक्स के रिस्पैक्ट 3x स्क्वायर। आ टर्म देखो की लिखा वाई एक्स स्क्वायर, मैं हुणे ही क्या कि वाई कॉन्स्टेंट है, जो मतलब 2x स्क्वायर लिखा होंदा तो की होंदी 2 पिया रहना सी, वाई स्क्वायर दी सॉरी एक्स स्क्वायर दी 2x आ जानी सी। तो वाई क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो पिया रहेगा अगे, तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x तो कितना आ गया 2x वाई। ठीक है, ए हले भी अगेन वाई कॉन्स्टेंट है, ये वाई स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, अगे पिया रहेगा आ वाला है। जिवें 2x की 2 होंगी है तो वाई स्क्वायर एक्स की वाई स्क्वायर हो जाएगी। आ गल समझ आई, बिकॉज y इज अ कांस्टेंट पुत्र, तो इट्स लाइक ऑफ द टाइप y स्क्वायर इनटू x के x टाइप। तो विद रिस्पेक्ट टू x के x की डिफरेंशिएशन की होगी k होगी। ठीक है, सो और उसके बाद y क्यूब दी 0 क्योंकि y ते कांस्टेंट है, 81 दी 0 ते आ थोड़े को डेल f बाय डेल x आ गई। इदां डेल f बाय डेल y कढो, मतलब एस एक्सप्रैशन की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y x कांस्टेंट है, क्योंकि x कांस्टेंट ते आ 0 हो गई, x कांस्टेंट अगे पिया रहेगा जिवें के वाई दी टाइप, के वाई दी के हो जाएगी, सो दैट इज एक्स स्क्वायर। हाँ जी, x कांस्टेंट है पिया रहेगा, वाई स्क्वायर की डिफरेंस 2y, सो 2xy, वाई क्यूब दी 3y स्क्वायर, 81 दी 0। ठीक है, सो फॉर्मूला की सेगा डेल एफ बाय डेल एक्स बाय डेल एफ बाय डेल वाई अगे नेगेटिव साइन, तो दैट इज डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, सो अगर इत्थे इत्थे इक्वल टू अगे आ वाला फॉर्मूला सी डी वाई बाय डी एक्स, आई गेस इफ यू लुक दिस इज exactly the same माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एंड दिस। ठीक है, सो ये बरत्या जा सकता है। अगेन स्कूल च ही लाना, मैं बार बार कह रहा, ज़्यादा मतलब स्मार्ट नहीं बनना क्योंकि उत्थे एक्सैप्टेबल नहीं है वाला मैथड। ठीक है, उत्थे आपां जिवें तुहानूं दस्सिया ही है उवें करना। ठीक है पुत्र, ओके लेट्स क्विकली मूव टू नेक्स्ट पार्ट। इलिप्स नज़र आ रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ जी, 1 बाई ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, 1 बाय बी स्क्वायर वाई स्क्वायर दी 2y, y की टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हो मल्टीप्लाई विद dy बाय dx यदि 0। ठीक है, 2 कटा जाऊगा, देयरफॉर dy बाय dx। हाँ जी, आ वाली टर्म परले पासे ले जाओ, कितना आएगा अब y बाय बी स्क्वायर पे आ जाना, y बाय बी स्क्वायर आ टर्म इधर आ जाएगी माइनस एक्स बाय ए स्क्वायर, देयरफॉर dy बाय dx मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज हाँ जी माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स बाय वाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, कोने च तुहानूं याद है टी इक्वल टू 0 भी लाउंदे हुंदे सी, तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी कर सकते। ठीक है,
इनफैक्ट ये जनरल है, किसी भी कर्व लिए ट्रू है। चलो लेट अस अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ जी करो। इवन एवरी प्रॉब्लम यू शुड ट्राई बाय गिविंग अ पॉज करके ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਐਸ ਸੱਚ x ਸਕੁਅਰ ਦੀ 2x, ਇੱਥੇ 2h ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ। x into y ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। x ਐਸ ਸੱਚ y ਦੀ dy by dx प्लस y एस सच x ਦੀ 1 प्लस b ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ y ਸਕੁਅਰ ਦੀ 2y क्योंकि y ਦੀ ਟਰਮ है इंटू dy by dx, ठीक है। ये ख्याल रखना। 2g x ਦੀ कांस्टेंट इंटू x ਦੀ कांस्टेंट 2g, 2f कांस्टेंट है y ਦੀ 2f ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ y ਦੀ dy by dx c ਦੀ 0। और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ dy by dx ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰ ਲਈਏ। एंड मोर ओवर इफ यू सी 2 सारे पास्यों कट्टे जा रहे, ठीक है। और हम टर्म्स सिलेक्ट कर लो, डी वाई डी एच एक्स या पहला ना सारा मल्टीप्लाई ब्रैकेट खोल लो, फिर तो ईजी होएगा। आप सीधा सीधा करिए डी वाई बाय डी एक्स हाँ जी, एक एच एक्स की टर्म है, ठीक है। होर ए बी वाई प्लस एफ, ठीक है, एच एक्स एंड बी वाई आ डी वाई डी एक्स की। बाकी बिना डी वाई डी टर्म कड़ी आ वाली एक जब आ ये मल्टीप्लाई होएगा तो एक आ जी वाली। सो राइट हैंड साइड से नैगेटिव कॉमन ले लो, कि आ गया माइनस ए एक्स प्लस जी प्लस एच वाई, ठीक है। बाकी फिर इनू तुसी नीचे लै जाओ, थोड़ा डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है बेटे। ओके अच्छा ये जो नज़र आ रहा है स्क्वायर खोल दो पहला, हाँ जी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। नाउ इत्थे लिखना तुसी स्कूल च एवरी टाइम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ जी। x4 दी 4x क्यूब, y4 दी 4y क्यूब इंटू डी वाई बाय डी एक्स, वाई की टर्म है तो गॉट टू मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस 2 आ वाला। फिर इत्थे प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट रूल लाओ, फिर रूल लिखो एक्स स्क्वायर एस एच डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वाई स्क्वायर एस एच डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल टू इधर भी प्रोडक्ट रूल है बेटे, एक्स एस एच वाई दी डी वाई बाई डी एक्स, वाई एस एच एक्स दी विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, ठीक है, ठीक है। ऑलमोस्ट देयर। तो की करिए जी डिफरेंशिएशन है कंप्लीट कर लिए, 4x क्यूब प्लस 4y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, हाँ जी ओके। और 2 चलो मल्टीप्लाई कर दें, 2x स्क्वायर। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर, हाँ जी 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर ऐदा ही एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। सो वंस अगेन क्वेश्चन शुरू किया, पहला रूल देखो, पहला सिर्फ प्लस है तो पहले की जमा दूजे की, दूजे जो वाई की टर्म है तो डिफरेंशिएट करके डी वाई डी एक्स मल्टीप्लाई करता। इतने हम प्रोडक्ट रूल से फिर प्रोडक्ट रूल आया, हम पहला है एस एच दूजे की, दूजा एस एच पहले की। हम जब रूल आया, रूल के अंदर फिर डिफरेंशिएशन कर दो, जे तो एक्स की टर्म है तो सीधा आ जाएगा, जो वाई की टर्म है डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई विद डी वाई बाई डी एक्स। और लास्ट की होंगे कि जड़ियाँ थोड़ियाँ टर्म्स हैगियां डी वाई बाई डी एक्स दियाँ आ वालियाँ आ एक बन्ने ले आके कट्ठियाँ कर लो, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स, हाँ जी एच की आएगा 4y क्यूब एच 4 एक्स स्क्वायर वाई, इधर माइनस एक्स, ठीक है। बाकी आ वाली टर्म तो आ वाली परले बन्ने ले जाओ, वाई पे आई है माइनस 4x क्यूब माइनस 2x वाई स्क्वायर। और लास्ट स्टैप ते बेटे आ वाला नीचे लिख के डी वाई डी एक्स एक पासे बाकी एक पासे लिखा करो, ठीक है। आई होप आ क्लीयर है थानू, है ना। नहीं तो एक बार तुसी रिवाइंड करके देख सकते, हालांकि इन्ना कुछ औखा है नहीं है। इट शुड बी क्लीयर इन द वन इन सिंगल व्यू आई गेस। ओके इधर शुरू करते हैं, पहला अगेन प्लस है, पहला एदी डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो एदी की होएगी साइन एक्स टाइप है चेन रूल, साइन एक्स की की होएगी कॉस ऑफ जो भी है इंटू जो भी है ओदी डिफरेंशिएशन नाल मल्टीप्लाई, ठीक है। आ गल समझ आई। साइन एक्स वाली फॉर्म है बेटे, एक्स नहीं है तो चेन रूल लगेगा,
साइन एक्स की cos x इंटू जो भी अंदर डिफरेंशिएट ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ और जो भी होएगा बाद च कर लांगे ठीक है प्लस इत्थे डिवीजन रूल ठीक है न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर हाँ जी डिनोमिनेटर द स्क्वायर डिनोमिनेटर एज सच इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x1 माइनस x एज सच इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दी 2x ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਦੂਜੇ ਦੀ y ਦੀ dy by dx ठीक है ਹੁਣ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਲੇ dy by dx कैलकुलेट करना cos of x into y अच्छा प्रोडक्ट रूल लाओ ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट फंक्शन एज सच सेकंड दी dy by dx y एज सच x दी 1 ठीक है ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਓ y by y square 1 by y इधर माइनस x by y square into dy by dx is equal to 2x minus dy by dx ठीक है और फिर ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਸੋ ਆ x ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ x ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ x cos of x into y into dy by dx plus हाँ जी ਇਹਦਾ y ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ y cos of x into y ठीक है और सो प्लस 1 बाय वाई चलो हम लिख ही लिया जी माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ dy by dx ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ ਸਪੌਟ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਇਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਏ ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ टेक dy by dx कॉमन हाँ जी की आएगा x cos of xy आ वाली कवर होगी अच्छा माइनस x बाय वाई स्क्वायर अच्छा माइनस dy by dx इधर लेवांगे प्लस आएगा सो कॉमन लेके प्लस 1 आ जाएगा आ गया इक्वल टू 2x आ वाली टर्म इधर माइनस वाई cos of xy ठीक है माइनस 1 बाय वाई बस नैक्सट स्टैप तो हले कंप्लीट नहीं मैं किया एनू तुसी मैं स्टैप अवॉइड कर रहा जस्ट वांट टू सेव टाइम आ नीचे लेके जाओगे ठीक है फिर डी बाई डी एक्स लिख दो ठीक है सो वंस अगेन पहला डिफरेंशिएट करना शुरू करो रूल देखो सिंगल फंक्शन है साइन एक्स टाइप है चेन रूल साइन एक्स दी कॉस एक्स इंटू जो भी अंदर है ਉਹਦੀ डिफरेंशिएशन करो अगर तो कली एक्स की टर्म होंगी तो गल खत्म जिवें प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लाता रूल च देखो जो एक्स की टर्म है तो सीधा कर दो वाई की टर्म है तो फिर वो डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर दो ठीक है आई एम रिपीटिंग दिस इन एवरी प्रॉब्लम सो दैट तुहानू एन समझ आ जाए गल ठीक है चलो आ करते हैं कहता साइन स्क्वायर वाई मतलब साइन वाई दा होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट ठीक है अच्छा पहली चीज़ देखो पहला एक किहड़ी फॉर्म है चेन रूल है एक्स रेस्ट पर एन एक्स हो गया ठीक है सो चेन रूल लाइए कितना होएगा एक्स रेस्ट पर 2 हाँ जी 2 इतने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 साइन वाई इंटू हाँ जी की होंगे जिहड़ा एक्स है वो डिफरेंशिएशन ना क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है हो गया फिर cos x टाइप है cos x दी माइनस साइन ऑफ x इंटू वाई इंटू जिहड़ा भी अंदर वाला फंक्शन है वो डिफरेंशिएशन ना मल्टीप्लाई और कॉन्स्टेंट दी जीरो तो गल खत्म ठीक है जब पहला स्टेप लेके आएगा 2 साइन वाई अच्छा होना साइन वाई दी की होएगी cos वाई क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो इंटू डी वाई डी एक्स कराएंगे सो cos वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हाँ जी माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू वाई आ वाली टर्म अच्छा तो प्रोडक्ट रूल लाओ ब्रैकेट स्टार्ट करो एक्स एस एच वाई दी डी वाई बाई डी एक्स वाई एस एच एक्स दी 1 इक्वल टू 0 और लास्ट स्टेप की रहना पुत्र डी वाई डी एक्स टर्म एक आ वाली है जब आ ये मल्टीप्लाई होगा ये भी होएगा ना बाद लिखांगे आ सो आ दो टर्म चो असी डी वाई डी एक्स कॉमन करना सो कितना आएगा दिस इज साइन 2 वाई सो डी वाई बाई डी एक्स साइन 2 वाई ठीक है और ये माइनस एक्स साइन एक्स वाई अच्छा भी टर्म गई अच्छा आ टर्म देखो ना माइनस इतने आएगा माइनस वाई ठीक है ना बेटे आ तो ये मल्टीप्लाई होकर इतने ले लिया तो इधर टर्म है माइनस वाई वो राइट हैंड चला जाओ माइनस वाई साइन ऑफ एक्स वाई और लास्ट स्टेप आ नीचे लैके तुम डिविडिस कर लो और वो पूछता है एट x1 y पाई बाय 4 ये मतलब ये एक्स की वैल्यू 1
ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ π/4 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। ਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ अगर मैं x की वैल्यू 1 ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ π/4 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ, ਸੋ that will be dy by dx। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ y π/4 into 2 π/2 sin π/2 1 minus x 1 ਆ π/4 sin π/4 1/√2 is equal to y is π/4 sin π/4 1/√2। so आ नंबर नीचे ले जाओ, therefore π/4 √2 divide by 1 minus 1/√2। you can take LCM etc। आ थोड़ा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप पूछी है, ठीक है, और डी बाई डी एक्सपोर्ट कर दो। क्लियर है बेटे? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, आ क्वेश्चन ये बाद 4-5 सवाल है, ये मतलब रूटीन च ही रोटेट करके ना पूछते थोड़े स्कूल वाले। ठीक है, तो इस करके दीज आर इंपॉर्टेंट क्योंकि स्कूल तो मैं दसदा ना जो टाइप रिपीट होनी है। सो एक एक क्वेश्चन अगले 4-5 सवाल जोड़े है उन्होंने चो एक तो 100% तुहानू सवाल आएगा। ओके, कहता जी एक्सप्रैशन दी है तैयार करना डी बाई डी एक्स। सो पहला तो जब स्टार्ट कर लगे तो कि टाइप है लॉग एक्स टाइप चेन रूल, इधर tan इनवर्स एक्स टाइप चेन रूल लग जाएगा। ठीक है, सो लेट अस अप्लाई चेन रूल लॉग एक्स। सो लेट अस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो लॉग एक्स की होगी पुत्र 1/x जो भी है ना, इनटू वट एवर इज दिस ओदी डिफरेंशिएशन नाल मल्टीप्लाई। ठीक है, हाँ समझानी चाहिए गल। log x दी 1/x इंटू इधर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। 2 tan इनवर्स x दी की होगी 1/1 प्लस जो भी x है उसका स्क्वायर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ वट एवर इज दिस। ठीक है, इट शुड बी क्लियर। पहला चेन रूल log x है ਉਹਦੀ 1/x इंटू ਇਹਦੀ डिफरेंशिएशन इदां tan इनवर्स x दी 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू ਇਹਦੀ डिफरेंशिएशन। ਹੁਣ डिफरेंशिएशन करते हैं की आउंदा डिफरेंशिएशन च आ रहा ਤੁਹਾਡੇ को दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हाँ जी, इंटू फिर प्लस वाला रूल है एक्स स्क्वायर दी 2x वाई स्क्वायर दी हाँ जी की होएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा ना मतलब दसिया कि डी वाई बाई डी एक्स नूं तुसीं वाई डैश भी लिख सकते हो, वाई वन भी लिख सकते हो। तो जस्ट मैं थोड़ा इत्थे खलारा घटाण खातर ना इत्थे वाई स्क्वायर दी क्या है कि 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मैं इत्थे वाई डैश लिख देना। ठीक है, वाई डैश इज डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, सो आया था हो गया पहले दी डिफरेंस जमा दूजे दी इज इक्वल टू 2 अपॉन अच्छा इत्थे वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है तो एलसीएम ले लो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे जो एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इंटू एदी डिफरेंशिएशन। हाँ जी, कि रूल लगेगा देखो ख्याल ना दैट इज डिवीजन रूल वाई बाय एक्स। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज सच इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर वाई दी वाई डैश या डी बाई डी एक्स माइनस न्यूमिनेटर एज सच डिनोमिनेटर एक्स दी 1। ठीक है, हुण कटिंग शुरू करो। इधरों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कटिया गया, एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर कटिया गया। ठीक है, 2 इधरों कॉमन तो 2 ना 2 कटे जाएगा। ठीक है, सो सारे कटे गए, की रह गया फिर एक्स प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई डैश माइनस वाई। तो लास्ट स्टैप क्या होंगे वाई डैश एक पासे कर लो तो आ माइनस वाई वाली टर्म इधर ले आओ तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई, आ वाई डैश वाली टर्म इधर ले जाओ। सो एक्स वाई डैश माइनस वाई वाई डैश, सो वाई डैश कॉमन कर लो वाई वाई डैश। so x plus y is equal to x minus y into y dash, therefore y dash which is nothing but dy by dx is equal to what x plus y upon x minus y। ठीक है, टू प्रूव वाला सी हाँ। ठीक है, x plus y upon x minus y समझाई कल बेटे? ओके, लेट अस डू दिस वन एज वेल। अच्छा, इन्हों ना दो तरीके ने कर सकते, एक तो सीधा डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, यदि ई रेस्ट पर एक्स दी ई रेस्ट पर एक्स इंटू डी वाई डी एक्स सॉरी 1 और ई रेस्ट पर वाई दी ई रेस्ट पर वाई इंटू डी वाई डी एक्स इतनी राइट हैंड साइड दी। बट इनू इदा भी कर सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर से लै जाइए तो थोड़ी जी कैलकुलेशन घट जाएगी। ई रेस्ट पर एक्स प्लस वाई इज ई रेस्ट पर एक्स इंटू ई रेस्ट पर वाई, और नीचे ले गया मैं। ठीक है, डिवाइड करता इधर 1 आ जाएगा तो कट्टिया गया
y ना y, तो 1 by e raised power y, e raised power minus y and e raised power minus x equal to 1. Now let me differentiate with respect to x. ठीक है, की आएगा ए हुन चेन रूल e raised पर x टाइप ਦਾ है ना, तो मतलब e raised पर x ਦੀ e raised पर this into जो भी है ਦੀ डिफरेंशिएशन ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे। ठीक है, सो कितना आ गया e raised पर x into d by dx of हाँ जी what minus y, and then e raised पर x ਦੀ e raised पर x into डिफरेंशिएशन ऑफ हाँ जी d by dx of हाँ जी minus x और 1 ਦੀ 0। अच्छा ਇੱਥੋਂ तक कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस अगे आ गया तो कितना आ गया माइनस ई रेस्ट पर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बेटे, एच ओ वी माइनस बार डी एक्स बाई डी एक्स 1 इक्वल टू 0, और क्योंकि इधर प्लस प्लस है तो आ माइनस कॉमन कट के ठीक है उधर 0 कर दो, तो इधर ई दी पावर वाई दी पावर प्लस है तो इतने नीचे लै जाओ, सो 1 बाई ई दी पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो ई दी पावर वाई दा, सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेस्ट पर वाई इंटू ई रेस्ट पर माइनस एक्स, इधर 0 ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस इज ई रेस्ट पर वाई माइनस एक्स। ठीक है, थोड़ा आंसर आ गया। ठीक है पुत्र, सो बाकी जिवें मैं क्या एक पिछे वाला क्वेश्चन जेडे दो एक हाँ दो तीन प्रॉब्लम दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा जेई च भी आ चुका है स्कूल च ते मतलब दे आस्क ए लॉट। ठीक है, क्योंकि इन्हों ने हुण आ क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है ये बाद उन्होंने मैथड थोड़ा जिहा लाइक रूटीन तो हट के इस करके वो पुछते हैं। ठीक है, सो इस करके मेक इट अ पॉइंट जिदा मैं कई बार तुहानूं बाकी चैप्टर भी दस दिंदा पिया सवाल आना ही आना, सो दीज आर वन ऑफ दैम। अच्छा ये थोड़ा जिहा पिक्यूलर मैथड करके है, क्यों इनू इदां करदे, जे आपां रूटीन वे ना करिए तो की होएगा, साइन वाई दी आपां कॉस वाई करांगे है ना, फिर आप डॉट रूल लावांगे, बट और ये तुसी y एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं लिख सकते क्योंकि इधर भी y है तो इत्थे भी y है, बट अगर तुसी ख्याल ना देखो y एज ए फंक्शन ऑफ x तो नहीं लिख सकते, बट x एज ए फंक्शन ऑफ y तो लिख ही सकते हो। ठीक है, कैन यू सी कि x एक पासे y दी टर्म एक पासे ले जाओ, सो दैट कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू साइन y अपॉन, तो ये थोड़ा इजी अल्टरनेटिव है। ठीक है, नाउ जब तुसी लिख लिया है हुण रादर दैन बिकॉज x इज द फंक्शन ऑफ y, तो इत्थों मैं की कैलकुलेट कर लांगा dx बाय dy। ठीक है, एंड आई नो दैट dx बाय dy इज इक्वल टू 1 बाय dy बाय dx, तो इसका मतलब इधर ले आके dx बाय dy का रेसिप्रोकल लैके मेरे को dy बाय dx आ जाएगा। सो इस करके ये थोड़ा ईजी है, और इसे करके ज़्यादा पूछते हैं कि बच्चा इनू इंप्लीसिट फंक्शन ना करे। ठीक है, और ये बड़िया वेरिएशन दी किताब च, साइन वाई दी कॉस दी टर्म है कई बार साइन दी इत्थे एंड सो ऑन, तो लॉजिक मोरल सेम ही है। तो हाँ जी डी एक्स बाय डी वाई करते हैं, हम आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इधर ही वाई दी टर्म है, तो हम इतने साइन वाई दी डिफरेंशिएशन कॉस वाई होएगी, नाल डी वाई बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रही। सो डिनोमिनेटर द स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर एज सच इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर साइन वाई दी कॉस वाई। ठीक है, डी वाई डी एक्स आएगा ना, नहीं आएगा बिकॉज डी वाई बाई डी वाई आएगा, कोई वाई दे रिस्पेक्ट चाहते वो वन होएगा, माइनस न्यूमिनेटर एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर साइन ऑफ समथिंग दी कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्लस वाई, ए दी 0 वाई दी 1, ए ते कांस्टेंट है। तो इफ यू सी नाउ दिस इज अ फॉर्मूला साइन ए cos b minus cos a sin b, so therefore that is a formula, compound angle formula, that is sin of a minus b, a minus b divided by sin square a plus y, that is dy by the y ना y कटेगा, therefore dx by dy। ठीक है, therefore dy by dx take its reciprocal is sin square a plus y divided by sin। ठीक है, आप ही प्रूव करना। ठीक है, सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सॉरी प्रॉब्लम एक आ वाला क्वेश्चन ते नेक्स्ट आ भी। ठीक है, सो एच भी अगेन जे आप ट्रेडिशनल मैथड ना करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगांगे पहला फर्स्ट फंक्शन है सर सैकेंड दी एच करन लगांगे फिर वो डी बाई डी एक्स आएगा, बट इफ यू लुक राइट हैंड साइड ते 0 है, तो लेट अस यूज दैट।
एक टर्म परले बने लै जाओ, ठीक है। नाउ वी कैन स्क्वायर, उन्ना अंडर रूट तुहाडा उड़ जूगा, मतलब अंडर रूट वाली जिहड़ी एक्सप्रैशन है सिंपलीफाई हो जाएगी, ठीक है। सो लेट अस स्क्वायर, स्क्वायर करो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अच्छा स्क्वेयरिंग जब करते हैं ना, मैं पहला भी कई बार दस चुका ਤੁਹਾਨੂੰ कि उस की होंगे कि मैं मान लो एक्सप्रैशन दी है मैंने स्क्वायर करता तो कि आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर मैं गाय सॉल्व करूंगा, मेरे को 1 भी आ गया -1 भी आ गया। स्क्वायर करना एक्सट्रा आ जाता है, जिवें हम एक्स इक्वल टू 1 इनू सैटिस्फाई नहीं करता, -1 करता है, तो स्क्वायर करके जो भी एक्सप्रैशन आएगी वो इनू तो इंक्लूड करेगी करेगी, ठीक है। सो इस करके जो एक्सट्रा आएगा जो वो आप रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, वो देख लाँगे कि सैटिस्फाई नहीं करता, समझ गल। सो वैन एवर भी स्क्वायर सम एक्सप्रैशन वो तो आ ही गया ना, वो प्लस भी आ जाता, माइनस भी आ जाता, ठीक है। सो इस करके इनू स्क्वायर करना आ वाली एक्सप्रैशन ਦੇ ਵਿੱਚ आएगी, जी एक्सट्रा आएगी जी ਉਹਨੂੰ सैटिस्फाई नहीं करेगी ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ठीक है। सो बस ਹੁਣ सिंपलीफाई कर लो, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਓ माइनस वाई स्क्वायर एक्स, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इधर रखता, इन्हों चो एक्स वाई कॉमन आ रहा, एक्स माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, वो भी कॉमन कर लो, एक्स माइनस वाई की बचेगा एक्स प्लस वाई एदे प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, देयरफॉर ईदर एक्स इक्वल टू वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आ एडिशनल है, आ इनू सैटिस्फाई नहीं करता बिकॉज दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, राइट। आ एक्स इक्वल टू वाई पुट करोगे तो एक पॉइंट आ रहा, चेक करो, एक्स की वैल्यू वाई पुट करो या वाई दी एक्स कि आ गया एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये एक एक्स आ गया, बस ये आ गया 2x, दिस इज इक्वल टू 0, लाइक दिस इज नो लॉन्गर अ फंक्शन मोर ओवर, सो ਇਹਦਾ मतलब फंक्शन तो आना चाहिए सी ना, ठीक है। सो सिर्फ दो पॉइंट है ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ सैटिस्फाई करते हैं, बट आ जी एक्सप्रैशन है दिस इज अ फंक्शन ऑफ, आज मैं शो किया ਤੁਹਾਨੂੰ स्कूल च करने की लोड़ नहीं है, सीधा सीधा लिखो दिस डज नॉट सैटिस्फाई, सो देयरफॉर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, सो ਇਹਦਾ मतलब आ वाली इक्वेशन तो आ इक्वेशन आइडेंटिकल है, ठीक है। सो इस करके इनू आप डिफरेंशिएट कर लीए, सो वाई कॉमन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, सो एक सिंपल जहा डिवीजन रूल का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, मतलब दिस एक्सप्रैशन आफ्टर सिंपलीफिकेशन इक्वल टू दिस, ठीक है। बस बाकी तो फिर डी वाई बाई डी एक्स कर दो, सो डी वाई बाई डी एक्स इज डिनोमीनेटर का स्क्वायर, डिनोमीनेटर एज सच, ठीक है, माइनस ना आ वाला इतने अगे पे डिनोमीनेटर एज सच इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर 1 माइनस न्यूमिनेटर एज सच एदी 1, सो आ कट के कितना आ गया -1 बाय x प्लस 1 द होल स्क्वायर, एंड दैट्स व्हाट वी नीडेड टू प्रूव, ठीक है पुत्र। सो ये हो गया ऊपर वाला, तो पहला जो कराया मैं बार बार कह रहा कि इन्हों चो दे आस्क अ प्रॉब्लम, अभी इदा ही है कि सबस्टिट्यूट करांगे तो सीधा करांगे तो अगेन थोड़ा लेंदी जाएगा, और इनवर्स भी पढ़िया कि यहो जी एक्सप्रैशन आप साइन कॉस सबस्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये एवं करते हैं, x4 लिख लो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, y4 लिख लो वाई स्क्वायर का स्क्वायर, इतों भी नज़र आ जाता, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई वी आर गोइंग फॉर दैट बिकॉज अदरवाइज करांगे वो लेंदी चला जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर पुट कर लो साइन थीटा एंड वाई स्क्वायर पुट कर लो साइन ऑफ लेट्स से सम अदर एंगल 5, एक्स एंड वाई वेरिएबल तो थीटा 5 वेरिएबल, ए कॉन्स्टेंट है, ठीक है। या नाल इत्थे लिख ला थीटा किहदे बराबर है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, फाई किहदे बराबर है साइन इनवर्स वाई स्क्वायर, ठीक है, इन्हूं वरत लांगे बाद। नाउ व्हाट इज दिस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी पुत्र साइन थीटा, सो 1 माइनस चलो पुट कर दी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ए टाइम साइन थीटा माइनस साइन फाई, ठीक है। सो दिस इज कॉस थीटा, लाइक वी विल अज्यूम द पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है, एंड कोई रेंज नहीं गिवन, एंड कॉस फाई, ठीक है, इज इक्वल टू, हाँ जी ओके थे, हाँ ए साइन थीटा माइनस साइन फाई, अच्छा अगेन चलो अंडर रूट तो उड़े, बट हले भी सीधा नहीं होया, हुण कॉस सी प्लस कॉस टी ला दो, सो दैट इज 2 कॉस थीटा प्लस 5/2
cos थीटा माइनस 5/2। सिंप्लीफाई करना पर्पस है ना, हाले तो कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो a साइन c माइनस साइन d, ए भी 2 साइन थीटा माइनस 5/2। ठीक है, एंड cos थीटा प्लस 5/2। नाउ आई गेस कटियांगे टर्म्स। ठीक है, अगेन ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਟਰਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਯੂ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਇਟ ਆਊਟ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਏਗੀ। तो आ 2 ना 2 कटिया गया। ठीक है, तो ਤੁਹਾਡੇ को की बच गया। ठीक है, सो अब बच गया कि cos ऑफ दिस इज इक्वल टू a टाइम्स साइन ऑफ दिस। तो नीचे ले जाओ, cot ऑफ थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू a। एंड मोर ओवर असी x ਤੇ y ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, तो थीटा 5 ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ cot ਨੂੰ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ a ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ cot ਇਨਵਰਸ a ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। थीटा माइनस 5/2 इज cot ਇਨਵਰਸ a, ਆ 2 ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ क्वेश्चन सिंपलीफाई हो गया। थीटा की सी पुत्र साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 की सी साइन इनवर्स वाई स्क्वायर। मतलब आ वाली इक्वेशन जी उपर सी ते आ आइडेंटिकल है कॉट इनवर्स सी। नाउ आई कैन डिफरेंशिएट, इट्स ईजी टू डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ कितना आएगा 1 चेन रूल लगेगा। आ भी मेरा एक्स टाइप है, आ भी एक्स, साइन इनवर्स एक्स टाइप का थोड़ा फंक्शन है। सो 1 माइनस एदा स्क्वायर कितना आएगा x4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x माइनस एदा हाँ जी 1 माइनस वाई स्क्वायर द स्क्वायर y4 इंटू एदी डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और राइट हैंड साइड ते एक्स वाई की टर्म ही नहीं है तो कॉन्सटेंट है तो जीरो आ गया। सो आई गेस दैट्स इट। सो इनू सज्जे पासे ले जाओ, इक्वल लिया के तुसी तुहाडा जो तो असी प्रूव करना है तुहाडा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यू कैन सी यार देखो ना, इधर ले जाओ, राइट साइड ले जाओ, इनू इक्वल टू कर दो, वाई वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, वाई नीचे, तो थोड़ा प्रूव हो गया ये जो रिक्वायर्ड। और ये कई जगह इदा भी क्वेश्चन देता है 6 वाला देता है, वाई 6 फिर तो क्यूब दिता होएगा, एच भी चेंज होएगा। तो ये 6 है तो उन्होंने लिख लाँगे 1 माइनस एक्स क्यूब द स्क्वायर, तो फिर एक्स क्यूब ਨੂੰ पुट कर देंगे साइन थीटा। ठीक है, एंड वाई क्यूब ਨੂੰ साइन 5। ठीक है, हले घट पुछते बड़े आ वाले दो क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर रहा दिस वन और ए एक पिछे, सो दे आस्क अ लॉट ऑफ टाइम्स। अच्छा, कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਇਨਫਿਨਿਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਚ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਲੌਜੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਲੌਗ ਪਲਸ ਅੰਡਰ ਲੌਗ, तो y साडा स्टार्ट हो रहा है अंडर रूट ऑफ लॉग प्लस अंडर रूट ऑफ लॉग, कितनी टर्म्स है इनफिनाइट। तो अगर तुसी ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ अंडर रूट ऑफ लॉग आ पहला वाला, लुक एट दिस, इनफिनाइट टर्म चो मैं आ वाली टर्म कढ़ती ते y बन गया। y स्टार्ट कितों हो रहे से अंडर रूट ऑफ लॉग प्लस अंडर रूट ऑफ लॉग इनफिनाइट टर्म चो एक टर्म कढ़ती तो फर्क नहीं पेगा। तो मतलब आ वाला जो बचा है जिथों पैटर्न रिपीट हो रहा है वो साडा y आ जाएगा। ठीक है, आ समझाने की चाहिए गल, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस दिस इज अगेन y, बस बाकी तो कुछ भी नहीं है, स्क्वायर लॉग एक्स प्लस वाई, डिफरेंशिएट कर दो वाई स्क्वायर दी 2y, इतने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स दी हाँ जी 1 बाई एक्स प्लस वाई दी डी वाई बाई डी एक्स। सो खब्बे मने लै जाओ, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म 1 ते 2, सो 2y माइनस 1, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, जोड़ा कि तुसी प्रूव करना सी। अच्छा, इतने मतलब लॉग एक्स है तो इतने कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन एक्स कॉस एक्स वट एवर। ठीक है, सो वो आ जाएगा, कोई भी फंक्शन होएगा तो तरीका तो सारा सेम ही। ठीक है, सो यहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन जब इनफिनिट सीरीज के होन तो उन्हें तुसी एवें कर सकते हो। एक आ भी देखो, ये भी पहला पैटर्न पढ़ो की है, y इक्वल टू एक्स है प्लस 1 डिवाइड बाय फिर एक्स या फिर प्लस फिर 1 डिवाइड बाय फिर एक्स प्लस ए पैटर्न चलता जा रहा है। तो y कितों शुरू हो रहा सी x प्लस 1 बाय समथिंग, एक टर्म आ छड़ दो, इथों शुरू करो। सो आ जो लिखा है x प्लस 1 बाय x प्लस 1 बाय अप टू इनफिनाइट, ये भी तो y है। ये पूरी सीरीज चो एक यहो जिहा पैटर्न कढ़ लिया तो फर्क नहीं पाएगा। तो देयरफॉर दिस इज रिटन एज x प्लस 1 बाय y, आ साडा y है। बाकी तो गल खत्म, जब तुम लिख लिया फिर तो डिफरेंशिएशन रहेगी, इनू एलसीएम ले लो। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई
+1 डिफरेंशिएट कर दो वाई स्क्वायर दी बटे 2y इंटू dy by dx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x प्रोडक्ट रूल लग गया x हैज सच y दी dy by dx प्लस y हैज सच x दी 1 1 दी 0 dy by dx दी टर्म इधर ले आ जाओ कॉमन कर लो 2y minus x into dy by dx is y therefore dy by dx is y by this ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੈਸਨਸ ਕਰਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਵੀ ਕਵਰਡ ਐਵਰੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਚੇਨ ਰੂਲ ਲਾਉਨੇ ਆ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ y ਦੀ ਟਰਮ ਆਈ ਉਹਨੂੰ x ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦੋ ਬਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ dy by dx ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ x ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ